آج ہم ایوب کی کتاب اس کا 5 باب اس کی غالباً ہم ایک آیت کا مطالعہ کریں گے. 5 باب کی 6 آیت براہ راست آپ کے سامنے پڑھیں گے. سنیے گا. انسان جو تھوڑے دنوں کا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ وہ دکھوں سے بنا ہے. اور انسان جب سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دکھ ہی دکھ ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ اسے کہہ لیں کہ خاصی اچھی کنڈیشن میں مل سکے. دکھ وہ چیز ہے جو ہر وقت ہر گھڑی انسان کے لیے اس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو آئے کلام اقدس میں سے جی 5 باب کی 6 کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. کیا ابھی پڑھا ہے کہ جیسے جو دکھ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ دکھ وہ کہتا ہے کہ مٹی میں سے نہیں نکلتا، اور جو مصیبت ہے وہ بھی مٹی میں سے نہیں آتی، بلکہ جیسے اوپر کو چنگاریاں اڑتی ہیں ویسے ہی انسان جو ہے وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے. کون بھرا ہے؟ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ انسان دکھ سے بھرا ہے. لیکن ہم اس سے تھوڑا سا آگے دیکھیں، غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ انسان کا پیدا ہونا دنیا میں وہ دکھ کے ساتھ ہے. اگر کسی کے بچہ ہے، بیٹی کی پیدائش ہے یا بیٹی کی پیدائش ہے، تو اس کے لیے آواز کیا آتی ہے؟ نارمل کنڈیشن ہے یا اپریٹ؟ زیادہ اور کثرت میں کیا ہو رہا ہے؟ اپریٹ. اپریٹ کے ذریعے اس دور میں بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اور بچوں کی پیدائش پہلے اپریٹ کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن اس جدید دور کے اندر ہر ایک بچے کے لیے پہلے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو دکھ، اس کے بعد اس کے یعنی کہ اس ماں کے بچے کو دکھ ملتا ہے. کیونکہ ماں وہ دکھ اٹھاتی ہے جو آدم سے خدا نے کہا کہ تو درد کے ساتھ اپنے بچے کیا کرے گی؟ جنے گی. اور وہ درد یا تو اسے نارمل حالت میں میسر ہوتا ہے، اور یا اسے خاص طور پر اس زمانے کے اندر اس درد کی شدت بڑھا دی گئی ہے، بڑھ چکی ہے، کیونکہ وہ نارمل کنڈیشن وہ ختم ہو چکی ہے. اور 100 میں سے غالباً 80% اپریٹ ہر عورت کے لیے میسر ہو چکی ہے، کیونکہ درد کی کنڈیشن بڑھ چکی ہے. اور وہ درد کی کنڈیشن کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ دکھ کے کانٹوں کے اندر پرو دیا جاتا ہے. ہم اس دور سادہ لو دور کو پیچھے دیکھیں تو اس دور کے اندر گناہ کی اتنی شدت نہیں تھی، لیکن اب گناہ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. اور گناہ کی شدت کے ساتھ یہ غم جو ہے، جو دکھ ہے، اس کا بھی زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. وہ غم گھٹ نہیں رہا، کم نہیں ہو رہا، وہ زیادہ ہو رہا ہے. اگر کسی کی میں نے بولا ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ماں تو یا تو زیادہ ٹی وی واچ کرتی ہے یا کلپ واچ کرتی ہے، یا وہ اس کے پاس یہ ہمارے اس دور کا جو جدید ٹیکنیکل دور ہے وہ دیکھتی ہے وقت پاس کرنے کے لیے. تو جب اس کے اپنے بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس کو خوشخبری نہیں ملتی.
اگر ہم مذہبی لحاظ کے مطابق دیکھیں تو مذہبی لحاظ کے مطابق لکھا ہوا ہے یہودیت میں سے، میں نے اس سے پہلے بھی کتنی بار بیان کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ہر مذہب کو شریعت ملی ہے، اور نبیوں کی جو شاخیں ہیں وہ یہودیت میں سے ہیں، اور کلام اقدس کا جو رول ہے، جو بیس ہے، وہ یہودیت میں سے ہے۔ اور یہودیت میں آج بھی دور ہے، جس بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو ماں یہ کام نہیں کرتی، بلکہ یا تو شریعت کو وہ پڑھتی ہے یا دعاؤں میں زیادہ ٹھہرتی ہے تاکہ اس کے جسم کے اوپر نارمل کنڈیشن میں حالات دشواری کا سبب نہ بن سکے، تاکہ ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بہتری آ سکے۔ وہ اپنی زندگی کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ کم ہوتے ہوئے دیکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے مطابق یسوع نے کہا کہ جو اپنی جان کا دکھ، اپنی جان کی فکر نہ کرتا، وہ کسی اور کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں جینے کا بھی نارمل حالت میں کہیں کہ اتنا حق نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے لیے تو کچھ کرنا ہے نا۔ اپنے لیے جو کچھ کرتا ہے خدا اس کے لیے کرتا ہے۔ تو خدا نے دو پہلوؤں کے اندر یہ کہا ہے کہ انسان دکھ کے لیے بنا ہوا ہے، انسان دکھ کے لیے پیدا ہوتا ہے، انسان مصیبتوں کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ یرمیہ نبی نے کہا کہ اے خداوند، اس سے پہلے کہ اچھا تھا کہ میں زمین میں سے ختم ہو جاتا اور میں اپنی ماں کے پیٹ سے سقاط ہو جاتا، یا میں پیدا نہ ہوتا تو میں مر جاتا، اور میں دنیا میں میرے ماں کا جو پیٹ تھا وہ میرے لیے قبر نما یعنی کہ نمایاں ہوتی، لیکن میں پیدا ہوا ہوں جب سے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف دکھ ہی دکھ ہے، اور جتنے بھی شخص دنیا میں آئے ہیں اور جتنے بھی یہاں موجود بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اپنے دکھوں کا ازالہ کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن دکھ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کیا کوئی شخص بھی یہاں ایسا موجود ہے جو بغیر دکھ کے ہے؟ وہ دعوے سے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں دکھ کے بغیر ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے؟ کہیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے؟ کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں دکھ کے بغیر ہوں۔ آج کسی کو بیٹی کا دکھ ہے، آج کسی کو بیٹے کا دکھ ہے، آج کسی کو بہن کا دکھ ہے، آج کسی کو بیماری کا دکھ ہے، آج کسی کو اپنے گھر کا دکھ ہے، آج کسی کو اپنی اولاد کی طرف سے دکھ ہے، آج کسی کو کسی بھی طریقے سے اپنے باؤ اجداد کا دکھ ہے یا بچھڑ جانے کا دکھ ہے۔ یعنی کہہ رہے کہ 24 گھنٹے گرب و جوار ہر طرف دکھ ہی دکھ ہے جو انسان کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کا کہتا ہے کہ دیکھ، میں نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا تو میں اس کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں دکھوں کی کسوٹی تیرے اوپر استعمال کروں گا تو تیری بہتری ہوگی۔ دیکھ، تو اپنے دکھوں کا ازالہ کرنے کے لیے بھاگتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ مجھے خدا کی قربت چاہیے، مجھے خدا کی نزدیکی چاہیے، مجھے خدا کا جلال چاہیے، کیونکہ میں دکھوں کے اندر جیسے گزرتا ہوں تو خدا مجھے پسند کرتا ہے۔ اور ہم سب اپنی زندگی کو دیکھیں اور بالے کہ جتنے بھی خدا کی حضوری میں جاتے ہیں اور جتنے بھی خدا کے پاس جاتے ہیں یا کسی کے پاس جا کر اپنے دکھوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ میرا بوجھ یہ ہلکا ہو جائے تو میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ غم کا مداوا ہو جائے، دکھ کا علاج ہو جائے، تو جتنے پیسے ڈاکٹر صاحب آپ کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا غم، ہمارا دکھ، ہماری تکلیف کیا ہو جائے، یہ اچھی کنڈیشن میں آ جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ دوسروں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، اور جو میرے پاس آئے گا اس کا غم بھی جو ہے اس کے لیے مرہم پٹی میں خود کروں گا۔ آپ ایوب کی کتاب ہی میں سے دیکھیں، آپ یہی باب میں سے خدا ہمیں انسان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ 5 باب کی غالباً ہم 18 آیت لکھا ہے، دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے،
खुश किस्मत है। तंबी कैसे करता है? तंबी वो करता है दुख बेचकर, किसी को बीमारी की वजह से, किसी को औलाद की वजह से, और किसी को घर की वजह से, किसी को मैंने कहा कि बेटे बेटियों की वजह से वो दुख देता है। तो दुख देता क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि इंसान भागे और मेरे कदमों के नीचे आए और मुझे कहे, ऐ खुदावंद मैं तेरे पास आता हूं, मुझे संभाल। तो खुदा कहता है कि मैं भी ये चाहता था कि मैं तुम्हें दुख देकर अपनी कुर्बत के नीचे लेना चाहता हूं। हम खुदा की कुर्बत के नीचे आएंगे तो हमारे दुखों का अजाला भी हो जाएगा और हमारे दुखों के लिए जो कंडीशन है वो भी नॉर्मल हालत में होगी। आगे क्या कहता खुदा? देख, वो आदमी जिससे खुदा तभी करता है वो क्या है? खुशकिस्मत है। और दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद अच्छा हुआ कि मैंने दुख उठाया कि ताकि मैं तेरे क्या सीख सकूं? तेरे आयन सीख सकूं। और वो आयन को दुखों से अच्छा समझता है। वो कहता है कि मैंने खुदा के आयन तो सीखे, मैं खुदा के नजदीक तो हो गया और मैंने खुदा की कुर्बत तो हासिल कर ली और मैं खुदा के ज्यादा से ज्यादा उसका करीबी तो बन गया हूं ताकि मुझे खुदा की नजदीकी मिल गई है। और दाऊद को खुदा की नजदीकी मिली। और दाऊद देखे आज जमाने भी याद कर रही है कि दाऊद नबी था, उसको दुख तकलीफ मिली और वो कहता है कि मैं अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। हम में से कोई ये लफ्ज बोल सकता है, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र है कि हमें तू दुख दे रहा है, इसमें तू हमारी भलाई चाहता है। हालेलुया। हम इस बात को मद्देनजर रखें कि हम खुदा के लिए जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा हमारी भलाई चाहता है। क्या चाहता है? वो भलाई चाहता है, क्योंकि वो क्या है? वो भला है और उसकी शफकत है, अबदी है। हालेलुया। तो आगे वो खुदा कहता है कि जो मुझ पर ईमान रखते हैं, क्योंकि मैं रब्बुल आलमीन, मैं रब्बुल फाज, मैं यल कय्यूम, मैं जिंदा खुदा, आसमान और जमीन का इख्तियार मेरे पास, मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास, और मैं तुम्हें एक 6 बातों के लिए आगाह करता हूं। अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं 6 बल्कि 7 मुसीबतों से तुम्हें आजाद करूंगा। कितनी मुसीबतों से? 7 मुसीबतों से खुदा अपने लोगों को आजाद करना चाहता है जो मुसीबत में भी खुदा को नहीं भूलते, खुदा को नहीं बोलते। उनमें से कौन सी है? क्योंकि लिखा है, इसलिए कादर मुतलक की तादीद को हकीर ना जान, यानी कि उसके तंबी को हकीर ना जान। वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। हालेलुया। जख्मी कौन करता है? जख्मी खुदावंद ही करता है ना। और करता चंगा कौन करता है? चंगा भी वही करता है। वो कहते हैं कि मैं ही जख्मी करता हूं और मैं ही इंसान को चंगा करता हूं और मैं ही मरहम पट्टी करता हूं और मैं ही जख्मकारी करता हूं। लेकिन वो इंसान के साथ ऐसे करता क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे लोग मेरी तरफ लौट आए और मेरी तमजीद करे, क्योंकि खुदा अपनी तारीफ को करना चाहता है। हालेलुया। तो जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की खोलकर तमजीद करे, क्योंकि खुदा आपको गम देकर भी अपनी ताज़ीम करवाना चाहता है। और आगे चाहता है, वो कहते हैं वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे 6 मुसीबतों से आजाद करेगा, बल्कि 7 में से कोई आफत तुम्हें ना छूने पाएगी। सबसे पहली काल में वो तुझे मौत से बचाएगा। हालेलुया। काल में किससे बचाएगा? और जब काल आता है, आटे का बहरान है, रोटी नहीं मिल रही और पैसा नहीं मिल रहा, तो लिखा है कि मुकद्दसों के लिए वो राह निकाल देता है और मुकद्दस उसके कभी भूखे मार नहीं सकते। इसकी एग्जाम्पल कलामे मुकद्दस में से कि एलिया नबी काल के वक्त खुदा ने उसको कहा कि ऐ एलिया, तू मुझ पर ईमान रखता है और तू हलाक ना होगा, बल्कि तू हमेशा की क्या करेगा?
हमेशा की जिंदगी पाएगा। एलिया नबी को कहा गया कि इस मुल्क में काल है, जो तूने जमीन पर कायम किया वो आसमान पर कायम होगा, और उस काल के दिनों में मैं तुम्हें रोटी दूंगा, लेकिन जो मुझ पर ईमान नहीं रखते वो भूखे मरेंगे। जिन्होंने कहा खुदा कुछ नहीं कर सकता, उनके सर कैदर के नीचे जिनके दब कर पिस जाएंगे, लेकिन एलिया को रोटी मिलेगी। एलिया जा, कुदरीम के नाले को चला जा और जंगल में जाकर बैठ जा। और एलिया जंगल के अंदर जाकर चला गया और कुदरीम के नाले के ऊपर जाकर बैठ गया है। और कौवे आते हैं और एलिया के लिए गोश्त लेके आते हैं, और कौवे आते हैं एलिया के लिए रोटी लेके आते हैं। लेकिन आज के कौवे बच्चों से रोटी छीनते हैं, आज के कौवे आपके हाथों से रोटी छीनते हैं, लेकिन खादम के लिए, खुदा के तालिब के लिए कौवे भी खुराक लेके आते हैं, उसको भूखा मरने और काल के अंदर मरने नहीं देते। सब कहे हालेलुया। किसकी? यानी कि खुदा हिफाजत करता है जो उसके तालब हैं, अपने तालबों को बदला देता है, अपने तालबों को भूखा मरने वो नहीं देता। वो काल के अंदर भी उनके लिए रोटी मुयस्सर करता है, वो काल के अंदर भी उनके लिए खुराक मुहैया करता है, और काल के अंदर भी उनके ऊपर साहिबान है और आता है, और काल के ऊपर भी उनके चौगिर्द अपना खैमा तान देता है, ताकि मेरे लोग कभी भूखे ना मर सके। लेकिन जिनके दिल के अंदर जिनके किसी किस्म का फॉल्ट है, बीमारी है, जिनके गुनाह की बीमारी है, तो खुदा उनकी निगहबानी नहीं करता, खुदा उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता, खुदा उनको आगाह करता है। देख, पहले अपने दिल के क्या कर, साफ कर, क्योंकि उसका बंदा दाऊद कहता है, ऐ खुदाबंद, अगर मेरे दिल में जरा भर भी गुनाह होता तो तू मेरी क्या करता, ना सुनता। तो अजीजों, खुदा चाहता है कि सबसे पहले हम अपने दिल के अंदर झांके, जिसके अंदर खुदा बैठा हुआ है। वो कहता है कि तुम खुदा का मक़दस हो, और खुदा का रूह तुम में क्या है, तुम में बसा हुआ है। इस मक़दस, इस घर के अंदर, इस मस्कन के अंदर हमने बुराई को रखा और खुदा को जगह न दी, तो खुदा ने कहा मैं तुम्हें काल के अंदर से नहीं छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें मुसीबत में से आजाद नहीं करूंगा। ये पहला दावा है खुदा का कि खुदा काल के अंदर से अपने लोगों की क्या करता है, निगहबानी और हिफाजत करता है। हालेलुया। और उसके बाद वो कहता है काल में वो तुझे मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से तुम्हें महफूज रखेगा। हालेलुया। लड़ाई जितनी भी होगी, अगर इब्लीस की लड़ाई होगी, अगर दुनिया की लड़ाई होगी, अगर गुनाह की लड़ाई होगी, अगर इब्लीस की जंग होगी, अगर तू मुझ पे ईमान रखता है, मेरा बिलीवर है, मेरे पीछे पीछे चलता है, मेरा दामन पकड़ता है, तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें उम्र की दराज़ी बख्शूंगा और मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, क्योंकि मैंने तेरी जिम्मेदारी ले ली है और तूने मुझे अपने दिल के अंदर जगह दी है। इसलिए मैं तुम्हें दुखों से आजाद करूंगा और लड़ाई की तार से महफूज रखूंगा। हालेलुया। लड़ाई की तार से किन लोगों को खुदा ने महफूज रखा? इस्राएलियों को रखा। वो किससे निकले? मिस्र से निकले, और मिस्र से निकले तो दुनिया की कौम में उसके पीछे पड़ गई, और अमूरी, यबूसी, हवी, हत्ती और अलूमी और जरसासी और जितनी भी याफत के खानदान से लोग पैदा हुए थे, वो सिम के खानदान के बरखिलाफ हो गए और कहा कि सिम का खानदान तो इस्राएल से निकल रहा है, हम इनको हलाक कर देंगे, क्योंकि उनकी पहली बादशाहियां कायम हो चुकी थी। उन बादशाहियों ने इस्राएल को बर्बाद करने के लिए आगे से जंगें की, लेकिन खुदा ने कहा ऐ इस्राएल, देख, तेरा एक शख्स कितनों को घेतेगा, तेरा एक शख्स सैकड़ों को घेतेगा और तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। वो ज़बूर नबी की मार्फत कहता है कि ना रात को तुम्हें चांद की रोशनी तंग करेगी, ना दिन को तुम्हें सूरज की रोशनी सताएगी, ना काल के अंदर मैं तुम्हें कुछ जरर आने दूंगा, ना लड़ाई के अंदर मैं तेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ने दूंगा, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, और जो मुझसे दिल लगाता है, मुझे दिल देता है, मैं उसकी सहबानी करता हूँ। हालेलुया। आगे देखें, आगे वो कहता है हाँ, जितनी मर्जी दुख आए, लेकिन और दुखों के अंदर एक और वादा करता है कि तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। किससे?
जबान के कोने से सुनिएगा, ये मामूली बात नहीं है। आप सब जानते हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब जॉब करते हैं, सब नौकरियां करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो मैनेजर है या कोई सुपरवाइजर है या कोई और अच्छी कंडीशन का कोई भी हमारे ऊपर जो ओहदेदार होता है, उसकी जबान से, उसकी डांट से बचना चाहते हैं कि नहीं बचना चाहते? हम चाहते हैं। हमारा सीनियर हमको तंग करता है, वो कैसे करता है? वो आपके लिए लाठी नहीं चलाता, बल्कि वो क्या चलाता है? जबान का कोड़ा चलाता है। जब जबान का कोड़ा चलता है तो दुख होता है कि नहीं होता? सीनियर जब आकर बोलता है, देखिए कि ना बोल के क्या, मैं रात रोटी नहीं खाती, ऐना मन दुख आए, वो मेरा साढ़े ना बड़ा बोल जाए फलानी गल। तो जबान का कोड़ा जब फटता है सीनियर का, तो इंसान के लिए रोटी हराम हो जाती है। लेकिन खुदा यहाँ कह रहा है कि देख, तेरे सीनियर की जबान को मैं बंद करने की क्या रखता हूँ, कुदरत रखता हूँ, उसकी जबान बंद कर दूंगा। अगर तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है और कहेगा, ऐ खुदावंद, इसकी जबान के ऊपर अभी ताला लगा दे और ये साइलेंट हो जाए, और वो साइलेंट होगी। लेकिन अगर तू खुदा के साथ चलता है तो ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। हालेलुया, ऐसा वरना नहीं हो सकता अगर तो खुदा के साथ कांटेक्ट भी है। उसके बाद वो कहता है कि तू जुबान के कोड़े से क्या रखा जाएगा? महफूज रखा जाएगा। तू हलाकत और खुशकसाली पर हंसेगा। तू कहेगा कि कौन सा काल आया है, किधरों आटे दा बुहरान है, किथों नहीं आटा मिलता, बस साडा शुक्र खुदा दा घर रोटी मिलती पई। कब कहेगा तू? जब खुदा तेरे साथ होगा और तेरे लिए रिसोर्स पैदा करेगा और हर तरफ से तेरे लिए मुहैया करेगा, प्रोवाइड करेगा, और तू कहेगा, हंसेगा इन बातों के ऊपर कि मुझे ये बातें कभी कंफ्यूज नहीं कर सकती। हालेलुया। ये इन बातों में से अगर हम और देखें तो लिखा है कि जमीन के दरिंदों से तुम्हें कुछ खौफ ना होगा, जंगली दरिंदे तुझसे मिलकर रहेंगे और तो अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज गायब ना पाएगा। और तुझे यह भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद जमीन की घास की मानद बरोमंद होती चली जाएगी। हालेलुया। मुसीबत आएगी, दुख भी आएगा, बीमारियां भी आएगी, तकलीफें भी आएगी। आप मत सोचिए कि दुख में से हम बच जाएंगे। आप मत सोचिए कि तकलीफों से हम बच जाएंगे। आप मत सोचिए कि दर्दो अलम सोजो गुदास हमारी जिंदगी से कभी नहीं टकरा सकता। इनसे आपका पाला पड़ना ही पड़ना है। इनके क्या पड़ना है? इनसे हमारा पाला पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन गम की हालात के अंदर भी जो लोग खुदा को छोड़कर किसी और तरफ रुख करते हैं वो मायूस होते हैं। जो खुदा को छोड़कर जमीन के ऊपर जो ताकतें कायम हैं उनकी पैरवी करते हैं, उनके लिए खुदा कहता है कि तू गम और सोजो गुदास के अंदर जिंदगी बसर करेगा। तेरे लिए कोई मौजा क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि तू मुझे छोड़कर गहरों के पीछे भागता है। तो तेरा गम क्या होगा? तेरा गम बढ़ जाएगा और उस शख्स का गम बढ़ जाता है। इस गम का मैंने कहा कि कलाम अक़दस कहता है, यीशु ने कहा, मसीह खुदा ने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे। मैंने आगे आगे थोड़ी सी वो पीछे में जगह मिल जाए। पौलुस रसूल को कितने लोग जानते हैं? आप देखें, पौलुस रसूल ने शादी भी नहीं करवाई थी, आप सब जानते हैं ना। तो पौलुस रसूल कहता है मैं चाहता हूं कि शादी ना करवाएं। पौलुस क्या कहता है? मैं चाहता हूं कि शादी ना करवाएं, क्योंकि शादी ब्याह करने से काम क्या होता है? बढ़ जाता है, मुसीबतें बढ़ जाती हैं। और अगर जबत बच सकती हैं तो ऐसा कर ले। अगर गुनाह के अंदर आप हैं तो शादी करवा ले, कहीं गुनाह आपको आ ना दबाए। वही कहता है क्योंकि उसने शादी नहीं करवाई थी और प्रॉपर अपनी जिंदगी खुदा को दी।
और आलम था, मुफक्कर था और खुदा की हाजिरी में चलता था। सुनिएगा उसको खुदा ने क्या कहा भला, देख कलाम मुकद्दस में लिखा है, हननिया ने जवाब दिया कि आए खुदावंद, मैंने बहुत से लोगों से इस पलूस का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार कहनों की तरफ से इख्तियार मिला है। सुनिए कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उनको बांध ले। सुनिएगा, मगर खुदावंद ने क्या कहा, मगर खुदावंद ने उससे कहा, ऐ हननिया तू जा, क्योंकि ये कौमों बादशाहों इस्राएल में मेरा नाम ज़ाहिर करने का चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। किसे कहा गया है? पलूस से कहा गया कि उसे बता दे कि इसे कितनी शिद्दत से मेरी खातिर दुख उठाना पड़ेगा। पलूस ने यहां देखे को अपने जिस्मानी गुनाह नहीं किया, बल्कि खुदा ने कहा कि तू मेरे साथ चलना चाहता है, और जो लोग खुदा के साथ चलते हैं इब्लीस उनको दुख देता है। जो लोग खुदा की तमजीद करते हैं इब्लीस उनको दुख तकलीफ देता है, और जो प्रशिश करते हैं उनकी जुबान पकड़ लेता है, और जो कलाम पढ़ना चाहते हैं उनके दिमाग को मौफ कर देता है, और जो खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके कदम रोक लेता है, ताकि वो रोकता है कि ये खुदा तक ना पहुंच सके, बल्कि मेरे दायरा दुनिया के अंदर रहकर टीवी चैनल हर तरह की दुनिया की जो दुनियादारी की बातें हैं इनको अपनी जिंदगी के अंदर ले। और लेकिन मैंने बोला है कि जो लोग खुदा की तरफ कदम बढ़ाएंगे उनके कदम रुक जाएंगे, जो गाड़ी खुदा की तरफ बढ़ेगी वो गाड़ी खुदा इनके खराब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इब्लीस अपना जोर आजमाई करेगा। ऐसा होता है कि दुआ की तरफ आने के नहीं होता, गाड़ियां खराब होती हैं, और अगर आप खुद आना चाहेंगे तो आपको कंफ्यूज किया जाएगा, इब्लीस रोकेगा, आपको तकलीफ देगा। मैं तो जब से दुआ में जा रहा हूं समझ नहीं आती, मेरा तो दुख ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता? मैं जैसे दुआ में जाता हूं मेरे तो हेड पेन ज्यादा हो रही है, मैं जैसे दुआ में ज्यादा जाता हूं मेरे जिस्म के अंदर तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इब्लीस चाहता है कि आप इस बच्चे को इधर देखते हैं, वो भाई के पास बैठा हुआ है, वो कलाम को सुनना नहीं चाहता, वो कलाम से भागता है और वो प्रशिश से भागता है। किधर को जाता है? बैर को जा रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि कलाम प्रशिश दुआ ये आपके गमों का मतावा है। कलाम प्रशिश दुआ ये आपके जख्मों के लिए मरहम पट्टी है। कलाम प्रशिश दुआ ये आपके दुखों के लिए इलाज की मार्फत है। अगर हम इनको अपनाएंगे तो मौजा मिलेगा, अगर नहीं अपनाएंगे तो मौजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यही मेडिसिन मैंने बोला है, और यही आपके लिए एलोपैथिक, यही मेडिसिन, यही होम्योपैथिक, हर तरह की पैथिक जो है इस कलाम के जरिए खुदा की मार्फत आपके गमों का, आपके दुखों का इलाज जो है ये खुदा के एक तरीका दुनिया के मुताबिक है। जो लोग खुदा के इस तरीके को अपनाते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने ही लोगों को मैंने देखा है, वो मीटिंग में एक बार आते हैं, पारी साहब वही तो दुआ दे गए तो साडा तो मसला को नहीं हल हुआ। भाई मसला हल करना किसने है? किसने करना है? वो तो खुदा ने करना है। उसने अपने इकलौते बेटे के उससे से मौजा करना है। वो दुआओं में एक अगर बार आए तो दूसरी बार ना, मतलब है कि हमें खुदा से मतलब था, खुदा ने मतलब पूरा नहीं किया, अब हम नहीं जाएंगे। खुदा कहता कि अपना मतलब लेने के लिए मेरे पास ना, बल्कि क्या कर, मेरे साथ दिल लगा ले और देख, जो मेरे साथ दिल लगाते हैं मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इस्राएल ने खुदा के साथ दिल लगाया, वो दुखों में गुजरे, पीछे कौन उनके आ गया?
आगे समंदर था और पीछे दुश्मन की फौज थी और वो चिल्लाए और करलाए और गम और नाला किया और खुदा से कहा, देख खुदावंद, ऐ मूसा देख तेरा खुदा कहाँ है? पीछे हमारे फौज है, आगे समंदर है, आगे बहरे कुल्सम है, पीछे को जाते हैं तो मौत है, आगे को बढ़ते हैं तो मौत है। हमें गम ने, दुख ने, तकलीफों ने और गमों ने हमें दबा लिया है, देख तेरा खुदा कहाँ है? तो मूसा ने क्या कहा? ईमान में कायम रहो। ईमान में क्या करो? ईमान में कायम रहो। अगर गम की अंधेरियां आपके ऊपर से झुलती हैं तो झुलने दो। अपने पांव से क्या करो? उखड़ो ना, बल्कि कायम रहो। देखो खुदा की मदद आपके लिए आ रही है, लेकिन पीछे से वो फौज उनके करीब पहुंच गई है और बिल्कुल उनके सर के ऊपर वो घोड़ों की और दौड़े और वो जितनी भी फौज थी उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है, उनको मारने ही लगी है। तो क्या हुआ? खुदा की आवाज आसमान से आई और कहा, ऐ मूसा अपनी लाठी समंदर के ऊपर कर और रास्ता निकल आएगा। और रास्ता निकला और वो पार गुजर गए। लेकिन वो बहरे कुल्सम के अंदर गर्क कौन हुए? मिस्र की फौज गर्क हुई। और वो इस्राएल के दोस्त थे या दुश्मन? इस्राएल के कौन थे? वो दुश्मन थे। और खुदा ने इस्राएल के दुश्मनों को गर्क कर दिया और खुदा ने अपने बिलीवरों की फौज को गर्क कर दिया और खुदा ने अपने ईमानदारों की फौज को गर्क कर दिया और खुदा ने अपने ऊपर ईमान रखने वालों के लिए राह निकाल दिए। आज भी खुदा की आवाज है, आज भी खुदा की एक एक जिंदगी के लिए आवाज है। अपने कदमों पे खड़े रहिए, अपने ईमान को डावाडोल ना होने दी। बेशक इब्लीस की फौज पीछे से घोड़ों की लगामों को खींचे हुए आपका पीछे